رات کا برش کریں پوری رات آپ کا منہ صاف رہے. زیتون کی مسواک ایسے افراد جن کے منہ سے خون آتا ہے, سمیل آتی ہے, ان کے لیے بہترین چیز ہے. 50 گرام سونف لے لیں, 50 گرام اجوائن لے لیں اور 50 گرام نمک لے لیں. ریشہ ختم نہیں ہو رہا تو یہ پھٹکڑی دان درد نہیں جاتی, بڑا بہترین علاج ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. حکیم صاحب, ایک تو سب سے پہلے یہ جو دانت, کسی کے اگر منہ سے بدبو آ رہی ہو اس کو پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ سب سے بڑا چمکائیں گے بعد میں, پہلے یہ مسئلہ ختم بعد کریں. میں یہ بدبو والا مسئلہ حل کروا دیں پہلے لوگوں کا. کچھ کہہ بھی نہیں پاتے اور سہ بھی نہیں پاتے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بارے میں نا دانتوں کے حوالے سے ایک بڑی زبردست جو ہے نا حدیث کوٹ کرتا ہوں جس میں مسواک کا ذکر ہے. جی, السواک مطہرۃ للفم و مرضات للرب, یعنی کہ مسواک جو ہے وہ دانتوں کو صاف کرتی ہے, منہ کو پاک کرتی ہے اور رب کو راضی کرتی ہے. یعنی کہ مسواک اتنی بہترین چیز ہے کہ اگر کچھ دفعہ وہ بیچ میں نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کرتے مسواک تو یہ فرض ہو جانی تھی, تو لوگوں نے عذر بنا لینا تھا کہ مسواک نہیں تھی اس وجہ سے ہم نے نماز نہیں پڑھی. تو مسواک اتنی اہمیت کی حامل ہے, یعنی کہ دانتوں کا معاملہ اتنا اہمیت کا حامل ہے. جب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت تھا تب بھی سب سے آخر میں اما عائشہ سے مسواک منگوا کر مسواک جو ہے انہوں نے کی. تو مقصد کہنے کا یہ کہ دانتوں کا اتنا بڑا کردار ہے. منہ سے بدبو کیوں آتی ہے؟ اکثر اوقات بچے ہوں بڑے ہوں 2-3 غلطیاں ہوتی ہیں. ایک تو کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد کلی نہ کی, منہ کو صاف نہ کیا. دوسرے نمبر پہ برش کرنے کی یا مسواک کرنے کا ٹائم ٹیبل کا غلط ہونا, یعنی کہ رات کو جب ہم سوتے ہیں کھانا شانا کھایا, کھا کے اسی طرح سو گئے. اب جرمز منہ کے اندر رہتے ہیں پوری رات, اس سے کیا ہوتا ہے مسوڑوں کے اندر سوزش آتی ہے, منہ کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد ایک اور غلط کام کرتے ہیں, صبح اٹھتے ہی برش کرتے ہیں, برش کر کے پھر ناشتہ کر کے پھر چلے جاتے ہیں کام میں. اب ہمارے دانت کتنی دیر صاف رہے؟ 20-25 منٹ 30 منٹ. حالانکہ چاہیے تو یہ کہ رات کا برش کریں پوری رات آپ کا منہ صاف رہے. اس کے بعد صبح ناشتہ, صبح کلی کر کے وضو کر کے مسواک کر کے وضو کر کے آپ نماز پڑھیں, نماز پڑھ کے آ کے ناشتہ کرنے کے آدھے گھنٹے بعد پھر سب یہ جو آپ مسواک کی بات کر رہے ہیں اس کے بڑے انگنت فوائد. اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو دین رحمت ہے, آپ جماعت کے لیے جا رہے ہیں تو یہ بھی حکم ہے پیاز کھا کے نہ جائیں, کہ ساتھ والے کو سمیل نہ آئے, کہ دوسروں کے رائٹس کا بھی کتنا خیال کیا جاتا ہے. اور آپ ہر نماز سے پہلے جب آپ مسواک کریں گے تو جماعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے با جماعت تو کسی کو بھی آپ کے وہاں پہ ہونے سے تکلیف نہیں ہوگی. یعنی کہ دین کتنی رہنمائی کرتا ہے. بالکل, یعنی کہ مسواک کے یہ فائدے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ ہماری جو غلطی ہے, ناشتہ کرنے سے پہلے برش کرنا ہے. اور برش جو ہے جتنا بھی آپ اچھا لیں ہیں, آپ 2-4 دفعہ 5 دفعہ 10 دفعہ کرنے کے بعد وہ اس کے اندر وہ پاور نہیں رہتی, وہ چیز نہیں, کیونکہ پلاسٹک ہے نا, اینڈ تو وہ پلاسٹک ہے. مسواک کے اندر اللہ نے خاصیت رکھی ہے کہ اب مسواک ہے, زیتون کی مسواک اکثر یعنی کہ میری پاکٹ میں ہوتی ہے, میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. اس کی خوبصورتی ہے کہ یہ بڑی ساری مسواک ہے, آپ نے کی آگے سے حصہ کاٹ لیا, پھر آگے چلتے چلتے یہ 15-20 دن ایک زیتون کی مسواک نکال جاتی ہے. اور یہ زیتون کی مسواک ایسے افراد جن کے منہ سے خون آتا ہے, سمیل آتی ہے, ان کے لیے بہترین چیز ہے. اچھا, سمیل کے لیے یہاں پہ ایک بات آپ کو بتا دوں, جو بات ہم نے سمیل کی کہ سمیل کو ختم کرنے کے لیے پہلے یہ دیکھنا ہوگا سمیل کس وجہ سے. بعض اوقات آپ کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے, قبض ہو جاتی ہے, گیس ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے بھی تعفن جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے منہ سے سمیل آتی ہے. اگر تو قبض ہے اس کے لیے کیا کریں, 50 گرام سرا مکی کے پتے لے لیں اور 50 گرام سونف لے لیں, 50 گرام اجوائن لے لیں اور 50 گرام نمک لے لیں. اس کا فائن پاؤڈر کر کے آدھا چمچ صبح شام نیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں تو منہ کی سمیل ختم ہو جائے گی. پھر اس کے بعد ایک معجون مل جاتا ہے جوارش جالی نوس, آدھا چمچ روزانہ کی بنیاد پہ رات کو استعمال کر لیں, 1-2 ڈبیاں, انشاءاللہ اللہ کے حکم سے منہ سے سمیل چلی جائے گی. اس کے بعد آپ نے کہیں جانا ہے, جتنے مرضی آپ ہینڈسم ہیں, سمارٹ ہیں, خوبصورت ہیں, آپ کے منہ سے سمیل آ رہی ہے, یقین کرے اگلا بندہ یا تو ہاتھ رکھے گا یا منہ سائڈ پہ کر لے گا, یا اس کے ساتھ کوئی بیٹھے گا ہی نہیں. یہ ساری خوبیاں ہونے کے باوجود بھی پھر آپ خوفصورت ہی ہیں. خوفصورت خوبصورت نہیں ہے. یعنی کہ دیکھیں آپ کی کتنے مہنگی گھڑی, کپڑے, ہر چیز آپ کی ضائع چلی گئی صرف کس کے ایسے دانتوں کی وجہ سے. تو وہاں بھی آپ نے سونف اور سبز الائچی, یہ اتنی بہترین چیز ہے. دیکھیں اکثر اوقات لوگ سبز الائچی منہ میں کیوں رکھتے ہیں؟ اگر مسلسل رکھیں تو اس سے منہ کے اندر خوشبو آپ کے بڑی زبردست آتی ہے. تو اس لیے سبز الائچی کا استعمال جو ہے منہ میں
सौंफ और सब्ज़ इलायची ये भी मुंह की बदबू को ख़त्म करती है। लेकिन असल सबब क्या है, अगर तो रेशा पड़ा हुआ है तो रेशा ख़त्म होगा तो ही स्मेल जाएगी। अगर इंटरनल कोई प्रॉब्लम इंटरनली अगर आपके मसूड़ों में रेशा है तो फिर क्या करेंगे, सादा सी चीज़ है, नमक हमारे घरों में पड़ा होता है, 1 कप गर्म पानी लें, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसकी कुल्लियाँ करें। इतना कमाल का नुस्खा है। आपके मसूड़ों में दर्द हो रही है, आपके खून आ रहा है, रेशा आ रहा है, पीप आ रही है, फौरी तौर पे सुकून हो जाएगा। अच्छा। और हल्के फुल्के दांत दर्द के लिए तो कमाल का नुस्खा है, फौरी रिलीफ। उसके बाद आ जाएं, अगर फिर भी रेशा ख़त्म नहीं हो रहा तो ये फटकड़ी ड्राई कर देगी, सादा सी चीज़ है, ये आप पानी में थोड़ा सा मिला के घोल के इसकी कुल्ली कर लें, फौरी तौर पे जितनी भी आपके दर्द हो रही है, मसूड़े आपके ख़राब में, फौरी तौर पे रिलीफ मिल जाएगा, दर्द ख़त्म हो जाएगा। और ये आजमाया हुआ नुस्खा जो सदियों से चलता आ रहा है। उसके बाद बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि मुंह में जो स्मेल आ रही है वो ख़त्म नहीं हो पा रही, किसी भी चीज़ से अंदर कीड़ा लग गया है, अब टाटर जम गया हुआ है, तो टाटर के लिए क्या करें। अब टाटर जब जम जाता है तो वो अगर उसका इलाज ना किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता वो दांत ही निकाल देता है, मसूड़े आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देता है। उसके लिए सिरका, आम सिरका ले लें, सिरका लेके उसकी एक बोतल ले लें, आधी बोतल सिरके की ले लें, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दें, यही सादा नमक डाल के उसके बाद बाकी जो बोतल बची है उसके अंदर पानी डाल के वो रख लें। उसे आप रोज़ाना 1 दफ़ा थोड़ी देर के लिए मुंह में रखें, कुल्ली करें, थोड़ी देर तक मुंह के अंदर रखें, उसके बाद कुल्ली कर दी जाए तो टाटर आहिस्ता आहिस्ता आपका 1 बोतल से ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल कुछ टाट और कुछ इस तरह का गंदगी होती है दांतों के अंदर भी कि वो साफ़ नहीं हो पाती ब्रश से, तो उसके लिए स्केलिंग जो है वो रेकमेंड की जाती है। कुछ कहते हैं कि साल में 2 बार करवाएं, कुछ कहते हैं कि 1 बार भी आप करवाएं तो इनफ है। लेकिन लोग कहते हैं कि उससे दांत कमज़ोर हो जाते हैं, कुछ इस तरह की भी बातें हैं कि मसूड़े हैं, दांतों में भी गैप आ जाता है। तो तिब में क्या इलाज है और क्या इसकी तरफ जाना चाहिए, स्केलिंग की तरफ? हाँ, स्केलिंग जब आपके दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएं तो आपको पता है डेंटिस्ट सबसे दुनिया में महंगा तरीन इलाज यही है, डेंटिस्ट का। तो एक तो डेंटिस्ट को चेकअप करवा लें, अगर आपके ज़्यादा ही मसला हो चुका है तो 1 दफ़ा चेकअप करवा के 1 दफ़ा स्केलिंग करवा लें। लेकिन बार बार स्केलिंग करवाना ये आपके दांतों को, मसूड़ों को कमज़ोर यानी आपने समझ लिया कि साल में 2 दफ़ा लाजमी करवानी, कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? अब देखें, स्केलिंग तो अब लफ्ज़ आया, जब लोग मिसवाक करते थे कोई स्केलिंग का नामो निशान नहीं था। किकर की मिसवाक बेहतरीन और कमाल की है, अगर उसे किया जाए तो बेहतरीन आपके दांत चमक जाएंगे। उसके बाद इसमें पीलक की मिसवाक होती है बड़ी कमाल की, वो भी आपके दांतों के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। ठीक है, नीम की मिसवाक बड़ी ज़बरदस्त है, तुम्बे की मिसवाक बड़ी ज़बरदस्त है। तो मिसवाक अगर की जाए तो दांत साफ करेगी, कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि दांत मोतियों की तरह चमक जाए दूर से। अब आपने दांत चमकाने हैं, उसके लिए 2-3 नुस्खे हैं। एक तो पहले दांत चमकाने हैं, दांत मिटाने हैं। अच्छा, दांत ना, आपके दांतों को अगर अंदर कीड़ा लगा है, रेशा है, दांत चमक नहीं रहे, मुंह से बदबू आती है, उसके लिए एक बड़ा सादा सा नुस्खा बताने लगा हूँ, दांत भी चमकेंगे। सिर्फ आपने ये नमक लेना है, ये आपने यहाँ पे ना हाथ के ऊपर, ये फ्रेश आपने पेस्ट बना लें, मंजन बना लें, फौरी तौर पे इस्तेमाल कर लें। अच्छा। यहाँ पे नमक रखें, नमक के ऊपर थोड़ा सा ये सरसों का ऑयल ये डाल के ना, बेहतरीन है। अगर इसमें आप हल्दी शामिल करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो ये 2 चीज़ें बेहतरीन। और ये सदियों से चलता आ रहा है, ये कोई मेरा नुस्खा नहीं। ब्लड प्रेशर वाला जो है उसने अंदर नहीं लेके जाना पानी। अच्छा, यहाँ पे आपको बात हूँ, बाज़ों का ब्लड प्रेशर होता है खून गाढ़ा होने की वजह से, उसके लिए नमक अच्छा है, ठीक है, वो इस्तेमाल कर ले, खून को फौरी तौर पे थिकनेस को ख़त्म कर देगा। यहाँ पे क्या करना है, ये मंजन सादा से नमक लिया और सरसों का ऑयल, दोनों को मिक्स करके आपने दांतों पे, मसूड़ों पे मसाज करना है, कम से कम 2-4 मिनट। आप मुंह से राल बहती रहेगी, ये मुंह आपका अच्छे तरीके से साफ सुथरा हो जाएगा। और ये इतना अच्छा कि ऐसे अफराद जो कहते हैं हमारे दांतों को गर्म ठंडा लगता है, फौरी तौर पर रिलीफ है, दांत चमक नहीं रहे, दांत खूबसूरत नहीं हो रहे, बेहतरीन इलाज है। मसूड़े में सोजिश है, बेहतरीन इलाज है, ये किया जाए तो फौरी तौर पर। अच्छा हकीम साहब, हम सोशल मीडिया पे एक और चीज़ देखते हैं आजकल, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ऑयल पुलिंग करना। मतलब सुबह में उठें और आपने कोकोनट ऑयल ले लिया या कोई भी ऑयल ले लिया और वो आपने कुल्ली करनी है उसकी, या 3 मिनट 4 मिनट जितनी देर भी मुंह में आप रख सकते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा होता है? अच्छा, उससे भी तब ही फ़ायदा होगा अगर आपके दांत साफ हैं। ठीक है, वो दांतों को साफ नहीं करता, वो सिर्फ आप अपने मुंह की जब प्रैक्टिस करते हैं तो उससे दांत थोड़े से मजबूत होती हैं, आपके मसूड़े, ये आपके सारे मुंह के अंदर की एक्सरसाइज हो जाती है, बेहतर हो जाता है। अगर आपके टाटर जमा हुआ है, आपके मसूड़ों के अंदर सोजिश है, तो पहले आप उसका हल करेंगे। उसके लिए एक और आपको सादा नुस्खा बताने लगा हूँ, मेरे पास ना
उसे हमारा वो कहते हैं यूके वाला मंजन बड़ा हमारा चलता है और वो इतना ज़बरदस्त है कि वहाँ से उसने साथी ने बंदे को भेजा, मेरे पास फ़ोन पे बात करवाई, शुक्रिया अदा किया, उसके सारे दांत हिलते थे, सिर्फ एक दो दांत रह गए थे, सारे दांत। तो डॉक्टरों ने कहा था आपने रोटी नहीं खानी, राइस खाने, तो एक दो दांत भी चमकाने थे और नहीं चमकाने नहीं, उसने तो उसका हाल तो दूसरा था, रोटी खा ही नहीं सकता था। तो बाद में तो कहता मैंने 1 महीना चावल खाया, तो चावल भी नहीं मैं खा सकता था, यानी कि दांत हिलना इतना शुरू हो गए थे। अब दांत हिलती हो तो आप कुछ खा नहीं सकते। तो उन्होंने किसी साथी ने मेरी वीडियो रिकमेंड की, तो उन्होंने वो नुस्खा बना के इस्तेमाल किया, तो फिर उन्होंने शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे मतलब पे बंदे को भेजा, इतना ज़बरदस्त है, आपके दांत हिलते हो। मुस्तनद है, वो नुस्खा भी ज़रूर बताइएगा हमारे देखने वालों को। लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह का मार्केट में कोई पाउडर बना के, कोई मंजन बना के बेच रहे हैं, फिर जब डेंटिस्ट के पास आप जाते हैं तो वो कहते हैं जनाब आपका एनेमल उठ चुका है दांतों का, आप गलत चीज़ इस्तेमाल करते रहे। आपने जो बात की है ना, ये जो बात की है ज़बरदस्त इसलिए है कि आप कभी भी किसी ऐसे बंदे से चीज़ ले रहे हैं जो मुस्तनिद नहीं, उसे खुद नहीं पता कि इसका मजाज क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, तो फिर आपका वो नुकसान होगा। आप खुद से जो मैंने चीज़ें बताई हैं, ये वो वाली चीज़ें जो घर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और सादा चीज़ें, और इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये इस्तेमाल करके आप, और वाकई ही आप किसी भी जब डॉक्टर के पास भी जाते हैं, ऐसे किसी डेंटिस्ट के पास ना जाएं जिसके पास औजार भी अच्छे नहीं है और वो स्टेरलाइज नहीं करते। यूके वाला पाउडर बता दें। जी वो ज़रूरी है। अच्छा, उसमें क्या लेना आपने? 50 ग्राम फटकड़ी ब्रियां, जब इसे ब्रियां करेंगे इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। आप 50 ग्राम ले ली, उसके बाद सादा नमक, ये भी 50 ग्राम ले ले, और ये जो फटकड़ी है ना, इसको आपने इस तरह का लेना है, इस शेप में, और आपने तवे के ऊपर या कोई आपने फ्राई पैन है उसके अंदर आपने इसको फुला करना है, खिल करना कहते हैं इसको। उसमें रख के आँच नीचे से खोल दें, आग जला दें, तो ये पानी निकलना शुरू हो जाएगा। जब पानी निकलना शुरू हो जाए उसमें आपने क्या करना है, नमक 50 ग्राम डाल दें, और ये लौंग और अकर करा 10-10 ग्राम डाल दें पाउडर करके, ये आपने डाल दिया। अब वो उसके अंदर जब देखा आपने हल हो गया, तो लेमन काट के तो आधा लेमन उसके अंदर निचोड़ दें। ठीक है, निचोड़ दिया। अब इसको उतार लें, उतारने के बाद इसका फाइन पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद ये मंजन खूबसूरत सा तैयार हो गया। अच्छा, इस मंजन जो हम जितने भी मैंने बताए, अगर आप अंदर भी ले जाते हैं इसके साइड इफेक्ट कोई नहीं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका, हालांकि पेस्ट अगर आपके मुंह के अंदर चली जाए तो वो कैंसर का बायस बन सकता है। छालिया के जो निशान पड़े होते हैं, दाग धब्बे, वो भी दूर करते हैं। ये छालिया के निशान, दाग धब्बे, इनके लिए कमाल का रिजल्ट है, बेहतरीन रिजल्ट। और इसका इंटेक भी हो जाए तो मसला नहीं है, यानी कीड़ा अगर दांतों से भाग के कहीं और भी गया तो ये लास्टली जिनके दांत रहते ही पीले हैं, वो कुछ भी कर लें, बस पीला रहता है। हालांकि ना वो छालिया ना पान इस तरह की चीजें नहीं खाते। पिलाहट के लिए भी आपने यही नुस्खा इस्तेमाल करवाना, लेकिन थोड़ी देर तक मसाज करने के बाद आप कम से कम 2 मिनट तक मंजन को उतारे ना। 2 मिनट के बाद आप राल बहती रहे, ठीक हो जाएगा। एक जाते जाते बहुत बड़ा मसला है, लोगों का अक्सर दांत दर्द शुरू हो जाती है, दांत दर्द नहीं जाती, और इसका बड़ा बेहतरीन इलाज है। हाँ जी, ये 3 चीजें हैं बेहतरीन। इसमें 7 अजवाइन है, 7 पुदीना है, और साथ ये काफूर है। ये 3 चीजें लेके ना किसी भी इस तरह की बोतल में ना 10-10 ग्राम डाल के रख दें, ये मेल्ट हो जाएंगी। जब मेल्ट हो जाए तो उसके बाद इसका आप छोटा सा रुई के ऊपर लेके ना 2-3 ड्रॉप, आपका दांत दर्द हो रहा है, दाढ़ दर्द हो रही है, फौरी इलाज है। और हालांकि और इतना तेज इलाज है कि आपने लगाया, मेरे पास अक्सर आते हैं दूर दराज से कि आप वो ना रुई का एक वो देते हैं लगाने के लिए, तो दे दें। 2-2, 4-4 साल तक दोबारा दर्द नहीं होता। ये बेहतरीन, जबरदस्त, यानी मिनटों का नुस्खा और सालों तक दर्द आपके पास नहीं आएगा। दर्दें भी दूर भाग रही हैं, दांत भी चमक रहे हैं, और क्या चाहिए आपको। अब ये आपने नुस्खे आजमाने, और ये जो टूथपेस्ट आप महंगे महंगे यूज करते हैं कि झाग बन रही है आपके टूथपेस्ट में, नमक है तो फलाएं ढुंका, ये अच्छे नुस्खे हैं, ये इस्तेमाल करें और दांतों को चमकाएं।